Good morning. I'm good. Sambhavi, I'm good. Rupakshi, good morning. Okay, for today's class, Kavya, Babekdeep. Okay, Rehat Kaur, you will unmute yourself, Rehat. Rehat Kaur, unmute yourself, please. Okay, ma'am. Today, keep quiet and you will remain unmuted for today's class, okay? Okay, ma'am. Sahaj Verma is not showing me here. Okay, fine. Okay, good morning, good morning. Shagundeep, don't send too many messages, Shagundeep. Let's begin our class. Stop sending messages. All of you take prayerful posture. All of you take prayerful posture. Back correct. Back correct. Gantavya, good morning. Keep your back erect, hands on your lap. Take any mudra and keep your hands on your lap. Yes, very good, very good. Anhiya, good morning. Riya Sharma, good morning. Yes, keep yourself very straight, very nice, beautiful. Now inhale, long breath, take long breath. And exhale. Inhale and exhale. Do this practice 5 to 6 times. 5 to 6 times. Do this practice, please. It helps to circulate blood properly throughout our body. Priyanchal, good morning. So take this long breath, and not only this time, my dear student, practice this at least 5 to 6 times in a day, every day. 3-4 times if you will do the practice of the same, the blood circulates properly in your body. Take long breath and exhale. Again, long breath and exhale. And pray with me. Lord of all power and might, give me wisdom and understanding today. Let me grow in knowledge and bear fruit in active goodness. Strengthen me with ample power to meet whatever comes with fortitude, patience, and joy, and to give thanks to you in all things. Amen. Shagundeep, unmute yourself, please. Yes, ma'am. You are unmuted? Yes, ma'am. Okay, keep quiet, and if I'm not audible, then only ask me, ma'am, you are not audible. Otherwise, remain silent and listen to me. Okay, ma'am. As in the previous class, we discussed about, in the previous science class, in the lesson number 5, food and health. In this lesson, we already discussed about different kind of nutrients like carbohydrates, fats, protein, minerals. We already discussed in our previous class. So today, my dear students, I'm going to teach you about the rest, like roughage. What is roughage? What is why water? Importance of water. Importance of exercise in our body. How to preserve food. These are good eating habits.
Today we'll discuss all these things. Okay, let's begin our class with all these things. Whatever portion we read one day, we complete one day, it's your duty. You have to read that section at your home. You are having books with you and you have to read that section. Now today we start with the roughage. What is roughage? Roughage is the fiber present in the food. We get it mainly from fruits, vegetable, pulses and whole grains. Roughage क्या होता है? Roughage हमारे खाने में प्रेजेंट होता है. ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं. बट ओके मन्नत चौधरी, Rahad, then remain unmuted, my dear. Please don't disturb. So these are the fibers. ये हमारे खाने में कुछ fibers present होते हैं. हमारे खाने में कुछ fibers present होते हैं जो हमें fruit से मिलते हैं, vegetable से मिलते हैं, pulses से मिलते हैं, grain से मिलते हैं. But they don't give us any nutrient. इनकी कोई nutritional value नहीं होती है. लेकिन हमारी body के खाने को digest करने में इनका बहुत बड़ा काम होता है. अगर ये हमारे खाने में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा जो खाना है हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, हम अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. फाइबर डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हाउएवर इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ओके अश्विका, आई एम रिपीटिंग. फाइबर्स, द roughage is we obtain from plants, from fruits, from slugs, from vegetables. And this roughage help our body. This roughage, lack means कमी. lack का मतलब होता है कमी. हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में हमें मिलते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं ये उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इनकी हेल्प से हमारा खाना प्रॉपरली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है. सेम वे वाटर इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. Our body needs sufficient amount of water. Water helps us to digest the food and remove waste from the body. पानी बहुत important है क्योंकि पानी जो है एक तो ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, also absorption of nutrients in our body. और हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है वो भी वाटर की हेल्प से करती है. Also helps in throwing out waste from our body. And what the things that is not needed for our body, that this water throw them out from our body. और इसी की वजह से, इस पानी की वजह से जो खाना है जो हमें नहीं चाहिए खाना, वो खाना हमारी बॉडी में से वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है. Up to 60% of human body in adult body is water. हमारी बॉडी का जो 60 to 65% हमारी बॉडी है, अडल्ट जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो बॉडी है वो पानी से बनी होती है. मतलब उसके लिए पानी बहुत जरूरी होता है. So we need to drink 8 to 10 glasses of water every day. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 8 से 10 ग्लास पानी हर रोज पिए. Every day your parents ask you drink water. This time maybe we need water, but sometimes during the winter we don't need to drink water. But it's very important. Make a routine. When you get up in the morning, drink 1 glass of water at that time. After 2 hours, drink 1 more glass of water. Same way, it's not important that you drink water with your meals. ऐसा नहीं है कि पानी आपको अपने खाने के साथ चाहिए. जब आप खाना खाते हैं उस टाइम पर आप पानी नहीं पिएंगे, that's good. But it's important that you, okay Marine, ये बहुत important है कि आप खाने से पहले और खाने के बाद पानी को जरूर पिए. या आधा घंटा खाने से पहले या हाफ आवर खाना खाने के बाद आपको पानी को पीना चाहिए. And make sure एक रूटीन बनानी चाहिए कि at least 8 glass of water you should drink in it. Now the next is balanced diet. What is balanced diet? Different nutrients perform different function. हमारी बॉडी में अलग अलग nutrients हमने already discuss किया था. कार्बोहाइड्रेट्स का अलग काम है, I'm sorry, विटामिन्स का अलग काम है, मिनरल्स का अलग काम है, फैट्स का अलग काम है, प्रोटीन्स का अलग काम है. हर एक न्यूट्रिएंट का एक अलग काम है. So what is this balanced diet? When we take food, when all the nutrients such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins, mineral, roughage is present in our food in correct amount, that's the balanced diet. जब ये सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स
जब ये रफ एज के साथ, वाटर के साथ, जब ये सब चीजें हमारी बॉडी में, हमारे फूड में एक करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, एक सही मात्रा में प्रेजेंट होती हैं, तो उस चीज को कहा जाता है बैलेंस डाइट. दैट डाइट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट. उस बैलेंस उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट. Anandika, I will give you chance later. First, you understand and make point the things that you are not able to understand. जो जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उनको point out करिए, बाद में मैं time देती हूँ. Now, the next is absence of any such nutrient in our body may cause disease. अब हमारी बॉडी में अगर इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट की जो वैल्यू है वो कम होती है तो हमें कोई भी डिजीज अटैक कर सकती है. अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएंगे तो भी हम बीमार हो सकते हैं. अगर हमारे खाने में, गुड मॉर्निंग सहज, अगर हमारे खाने में प्रोटीन्स कम है तो भी हम बीमार हो सकते हैं. विटामिन, मिनरल्स, अगर किसी भी एक न्यूट्रिएंट की वैल्यू हमारी बॉडी में कम होती है तो हम बीमार हो सकते हैं. Like all the nutrients are not containing all, a single food not contain all the nutrients. ऐसा नहीं होता है कि अनंदिका गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं है कि सारे फूड आइटम्स में हमारे, सपोज हमने शुगर का एग्जांपल लिया, यहाँ पे शुगर एक न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट. रूपाक्षी, यू विल प्लीज कीप क्वाइट एंड नो वन सेंड मी द चैट. Those who are 15 minutes late and writing good morning ma'am. So the sugar, if we talk about sugar, sugar provides us a nutrient that is carbohydrate. sugar ने हमें एक nutrient provide किया, वो है carbohydrate. हमारे खाने में उसने एक nutrient दिया, that is carbohydrate. But it doesn't mean that this sugar contain all the other nutrients. इसके पास सिर्फ carbohydrate है, but does not contains fat, proteins and minerals. इसके पास सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है. शुगर में सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, फैट्स नहीं मिलते हैं, प्रोटीन्स भी नहीं मिलते हैं और मिनरल्स भी नहीं मिलते हैं. इसलिए हमें अलग अलग फूड आइटम्स को खाना होता है जिससे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा सकते हैं. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. अब हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग उनका फंक्शन होता है, उनका अलग अलग काम होता है, और वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स, ओके हरमन, आई एम रिपीटिंग, we'll take different kind of food. हम अलग अलग तरह का फूड लेते हैं. एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें हर तरह का फूड होना चाहिए. उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें फैट्स भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. अगर हमारे खाने में किसी भी चीज की कमी होती है तो हमें कोई भी डिजीज अटैक कर सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ईट अ फूड दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो लाइक शुगर कंटेन कार्बोहाइड्रेट. शुगर जो एक इस तरह का फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शुगर के अंदर बाकी और कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता. उसमें फैट्स नहीं होते, प्रोटीन्स नहीं होते, मिनरल्स नहीं होते. लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन्स मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स. जो हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं इनमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, बट लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स. लेकिन इनमें फैट्स नहीं होते और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट नहीं होते. Sometimes children are in habit of avoiding some food. You all are in this age. आप कभी मम्मा को बोलते होगे ये खाना नहीं खाना है, ये वाला खाना नहीं खाना है, ये हमें पसंद नहीं है, हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खानी, पालक नहीं खानी है. इस तरह के खाने आप लोग हमेशा, बच्चे जो होते हैं हमेशा अवॉइड करते हैं. बट इट्स नॉट गुड एट ऑल. ये बिल्कुल सही नहीं है. बिकॉज अवॉइडिंग certain specific food item in your daily food cause any kind of deficiency. अगर आप हमेशा ही अपने खाने में एक तरह की न्यूट्रिएंट को कम करते रहोगे, उससे हो सकता है कि आगे जाके हम बीमार भी हो सकते हैं. Over the years some nutrients remain missing from the diet. उसकी वजह से क्या होता है, कभी हम बहुत ज्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं, कभी हम सुस्त हो जाते हैं. Sometimes we have something on our face, कुछ white सा हमारी फेस के ऊपर आ जाता है, तो ड्राइनेस हो जाती है, लिप्स ड्राई होते हैं, लिप्स क्रैक होते हैं बच्चों के.
तो ये सारी जो होती है ये हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है. That's why it's very important that you eat everything. In the morning you eat chapati with vegetable or milk. During lunch, after that, after 2 hours, child need more energy than an adult. जो बच्चे होते हैं ना इनको खाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए. फिर 2 घंटे के बाद फ्रूट्स खाइए. It's not important that you eat that chip and with what rubbish biscuits and all that from outside shops. Take the food that contains nutrient. ऐसा खाना खाइए जिसमें nutrients present होते हैं. जिस तरह से फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट सैलेड बना लिया, फिर सैलेड खाने के साथ खा लिया, खाने को अच्छे से खाया, दालें खाई, सब्जियां खाई. जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज भी खा सकते हैं. तो ऑल काइंड ऑफ फूड यू मस्ट ईट. This can affect their growth and proper functioning of the body. If any nutrient lack in the body, then it affects the growth of a child. अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट किसी भी बच्चे की बॉडी में कम होता है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती. वो कहीं ना कहीं पे वो बच्चा थोड़ा स्लो हो जाता है, ढीला हो जाता है. We should therefore take a diet which contain all the nutrients in appropriate amount. इसलिए हमें एक ऐसी डाइट खानी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. It should also contain a good amount of roughage and water. और पानी भी प्रॉपरली लेना है और रफेज भी हमें अच्छे से लेना ही लेना है. तो such diet is called balanced diet. इस तरह की डाइट जिसमें हर तरह का खाना प्रेजेंट होता है हम इसे बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. So as I told you, all the different ages of people did need different kind of energy. हर different age के लोगों के लिए different energy level होता है. उनको different तरह का खाना खाना होता है. जरूरी नहीं है जो खाना मैं खाऊं वो आपको भी खाना है. You need more energy. For growing children, it's important to have a diet that contain more protein, carbohydrates and fats. अब जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं, जो आप लोगों की एज होती है, जिस एज में आप लोग ग्रो कर रहे हो, जब आप बड़े हो रहे हो, तो इस एज में आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन्स खाने हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने और सबसे ज्यादा फैट्स खाने. As we have already discussed from where we got the carbohydrates, from where we got the protein, from where we get the fat. So you need to eat such type of diet which contain all these things. Old people who are not so active and need less energy, they should eat less carbohydrates in fact. अब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादा काम नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं या थोड़ा सा एक रूम से दूसरी, ज्यादा उनकी एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती है. तो उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए. उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम होने चाहिए. So we'll discuss about balanced diet, a diet which contain all the nutrients, roughage, water in right amount. That is a balanced diet. Khushti, I got your name. My dear Harman, I got your name. Carbohydrates are the nutrients which give us energy. Carbohydrates ऐसे nutrients होते हैं जो हमें energy provide करते हैं. And nutrients is substance present in our food which are needed. Anagya, I will unmute you later, my dear. Which our body need to grow and to stay healthy. So this is a kind of food pyramid. From milk we get everything. Anagya's question is what we get from milk. हमें milk से क्या मिलता है? Milk से हमें बेटा सब कुछ, milk से हमें हर तरह का diet मिलता है. Milk contain all kind of carbohydrates. So it's a rich source of. Rupakshi, stop writing in Hindi. So milk is a good source of carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals and water. हर तरह का जो food है वो we call milk as a complete diet. हम milk को ना complete diet कहते हैं. इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को दूध पीना भी बहुत जरूरी होता है. जो बच्चे होते हैं उनके लिए दूध पीना बहुत important होता है. They need to drink milk, at least 1 or 2 glasses of milk every day. So this is a balanced diet. We call it as a food pyramid. अब इस food pyramid से हमें पता चलता है हमें कौन से nutrients कितने amount में चाहिए. हमें carbohydrates सबसे ज्यादा चाहिए, हमें vitamins और minerals उसके बाद चाहिए. Then we need protein and calcium and vitamins, and then we need fat. This is a kind of diet we need every day. ये एक तरह का खाना है जो रोज हमें प्रेजेंट होना चाहिए हमारे फूड आइटम्स में.
Very good. And here you drink 2 glasses of milk every day. Except in this, we also need to exercise. Exercise doesn't mean that we have to stand, sit for a long time. There are different ways to exercise. अब हमें जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज वही एक्सरसाइज होती है जो हम रूटीन में स्कूल में करते हैं एक्सरसाइज. दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. बट इफ वी प्ले क्रिकेट, इफ वी प्ले फुटबॉल, इफ वी प्ले टेनिस, एनी काइंड ऑफ गेम वी प्ले, दैट इज अ एक्सरसाइज फॉर अस. कोई भी तरह का गेम जब हम खेलते हैं, कोई भी तरह का स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. वो हमारे लिए एक एक्सरसाइज होती है. So any kind of cycling, swimming, running, it's also exercise. Shagundeep, not need to play whole day. At least 20-15 minutes are over. Yes, Sambhavi, that's great. You are doing yoga. So karate, push-up, gymnastics is also a kind of exercise. ये भी exercises में आता है. So balanced diet from the base of good eating habits. तो बैलेंस डाइट जो है गुड ईटिंग हैबिट्स की बेस है. अगर हमें गुड ईटिंग हैबिट्स हमें होती है, उसका सबसे मेन सोर्स है बैलेंस डाइट. हमारे खाने में बैलेंस डाइट का होना. ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड वेल. अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाइए, धीरे धीरे खाइए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खा रहा है तो वो भी उसकी डाइजेशन पे इफेक्ट करता है. Cooking has to be done carefully. Too much cooking can destroy many of the nutrients and vegetables. जब हम अपने खाने को बना रहे होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें हम इस चीज का ध्यान रखें कि खाना अच्छे से पकना चाहिए. अगर हम खाने को बहुत ज्यादा पका देंगे, इट मींस जला देंगे, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे खाने के अंदर से. नेक्स्ट, कुकिंग हैज मैनी मोर बेनिफिट्स. कुकिंग के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम. जो कुक अच्छे से बना हुआ खाना होता है उसे हम ज्यादा देर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ज्यादा देर तक उस खाने को हम रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं. इट ऑल्सो मेक द फूड जर्म्स फ्री एंड सेफ टू ईट. इसकी वजह से खाना जो होता है वो जर्म से फ्री होता है, उसमें जर्म्स नहीं होते हैं और वो सेफ होता है खाने के लिए. We do not always cook all our food items. Many fruits and vegetables like cucumber, carrot, radish and peas are often eaten raw. अब हर तरह के खाने को हम जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पका के खाएं. कभी कभी कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम जस्ट कच्चा ही खाते हैं, जैसे सैलेड में खाते हैं, कैरेट को खाते हैं, कुकम्बर को खाते हैं, रेडिश को खाते हैं. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉश. We must make sure that all such food items wash properly before they are eaten. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं उसको हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं, उसको अच्छे से धो रहे हैं. 2-3 times we have to wash that food item, then we have to eat. So there are different ways of cooking. अब खाना बनाने के अलग अलग मेथड्स हैं. लाइक बॉइलिंग, एक है कि हम खाने को उबाल के अच्छे से बॉइल करके खाएं, दैट्स द वन वे ऑफ ईटिंग. वन इज स्टीमिंग, स्टीम करके खाने को खाएं, दैट्स द अनदर वे ऑफ ईटिंग. नेक्स्ट इज बेकिंग, किसी भी चीज को बेक करके रखें और फिर उसको बना के खाएं, दैट्स अनदर वे ऑफ कुकिंग. एंड नेक्स्ट इज फ्राइंग. वी मस्ट अवॉइड द लास्ट वन. हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट वन को हम ज्यादा यूज ना करें. फ्राइंग, चीजों को फ्राई करके खाना इज नॉट अ हेल्दी डाइट. बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता है, बट ऑल रेस्ट 3 आर वेरी गुड. वेट हिताक्षी, डू यू नो मिल्क इज यूजुअली, हम दूध को हमेशा जैसे हम दूध को लाते हैं उसके बाद हम उसे बॉईल करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग से काफी सारे जर्म्स जो है वो दूध के मर जाते हैं और हम उस दूध को काफी देर तक संभाल के रख भी सकते हैं और वो पीने के काबिल भी होता है. नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. After this, it's very important how we are going to preserve food. But if we are not able to keep food properly, if we are not able to preserve food properly, then it loses nutritional value. अगर हम खाने को अच्छे से प्रिजर्व नहीं करेंगे, अच्छे से खाने को रखेंगे नहीं, तो वहां पे उसकी वजह से भी क्या होता है, जो खाना होता है उसमें बहुत सारे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है. या तो हम खाने को रेफ्रिजरेट फ्रीज करके रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर मोस्टली हम लोग करते हैं. जो खाना बच जाता है उसे हम अपने फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फिर बाद में जब हमें जरूरत होती है हम उसे दोबारा से गर्म करके निकालते हैं फिर खाते हैं. ड्राइंग, चीजों को सुखाते हैं. समटाइम्स फूड इज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड टू प्रिजर्व प्रिवेंट इट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेड चिलीज आपने देखा होगा,
या फिर मिंट की लीव्स जो होते हैं वो भी हमारे घर में सुखा के रखी जाती हैं। ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें अगर हमें ज्यादा देर तक रखना होता है तो हम इनको प्रिजर्व करते हैं, इनको ड्राई करके रखते हैं। स्टेम्स मीन स्टीमिंग, स्टीमिंग की हेल्प से, स्टीम करके, खाने को स्टीम करके, जैसे मोमोज बनते हैं स्टीम करके। एंड कैन फूड, कैन जैसे जैम्स होते हैं, हमारे जूसेस होते हैं, उनमें से मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है और उनको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखा जाता है। That's also needed. And one more is preservation. We need adding preservative. Preservatives क्या होते हैं? जैसे salt, sugar, oil. We will add in our certain food to slow down the growth of microbes. इनकी वजह से भी जो microbes हैं, जो इन फूड आइटम्स है, वो प्रिजर्व करके रह सकते हैं। तभी हमारे अचार ज्यादा देर तक रहते हैं, क्योंकि हम उनके अंदर सॉल्ट भी डालते हैं और ऑयल भी डालते हैं। So these are the different ways through which we can preserve our food, we can keep ourselves healthy. Now I'm going to take your queries one by one. Already Anandika, yes my dear, unmute yourself please. Excuse me, ma'am. Yes dear. मैम जो आपने टेस्ट दिया था ना, कौन सा वाला बेटा? साइंस का? मैम साइंस का, मैम उसको मैंने 3-2 टाइम्स किया मैम, वो पर फिर से आ रहा था। मैम मेरे भाई की क्लास भी होती है, तो मैम सारा नेटवर्क मैम इसमें चले जाता है, और मैम ऊपर से फोन 2G है। देखो वो तो पेपर इतना, मतलब वो पेपर इतना लेंथी नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा नेटवर्क, उसमें आपने एक क्वेश्चन को तो अपलोड करना था, बाकी तो इतना ज्यादा नहीं था उसमें कुछ डिफिकल्ट माय डियर। मैम 3-2 टाइम्स किया हमने, पर मैम वो दोबारा आ रहा था पेपर। ओके, आई विल चेक, बट आई थिंक आई विल गेट योर पेपर। मुझे लगता है मुझे आपका पेपर मिल गया। वो तो देखो बेटा, अगर आप सबमिट करोगे उसके बाद वो आता ही रहेगा। नो नीड, आप जब एक बार पेपर सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको गूगल फॉर्म में एक मैसेज आता है, आपकी मेल में एक मेल आती है कि आपका पेपर सबमिट हो गया। जिस बच्चे के पास वो मेल आ गई कि आपका पेपर सबमिट हो गया, इट मीन्स आपका उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपका पेपर मेरे तक पहुंच चुका है। मैम पर नहीं आया मैसेज। ओके, आई विल चेक एंड लेट यू नो। ओके मैम। यस रूपाक्षी, चुप चुप। रूपाक्षी, हाँ रूपाक्षी, यस मैम। you please हाँ जी, why you are creating trouble in the class? मैम what is the meaning of roughage? रफेज फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। और मैम what is the meaning of balanced diet? एक ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, हर तरह की न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अनज्ञा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस मैम। यस, योर क्वेश्चन प्लीज। मैम मेरे को एक वर्ड नहीं आया। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट माय डियर। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है। आपने पहली क्लास नहीं ली है ना, तभी आपको नहीं पता चला कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट दैट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। सो हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ओके ओके मैम। मैम यस खुशमीत, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। खुशमीत, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस डियर। मैम सार्डाइन्स क्या होता है? क्या बच्चा? सैल्मन एंड सार्डाइन्स। वेयर इज इट? मैम फैट्स में। ओके ओके, सैल्मन इज अ सी फूड। सैल्मन जो होता है वो एक तरह का सी फूड होता है, और जो सैल्डाइन्स होते हैं ये भी एक तरह का फूड होता है जो जिसमें फैट्स होते हैं। ये दोनों ही सी फूड्स हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम डियर। गगनदीप, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस मैम। यस, योर क्वेश्चन प्लीज। मैम हमें फैट से क्या मिलता है? फैट्स जो होते हैं, जो ग्रोइंग एज होती है उसके लिए फैट्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना, उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा
फैट्स की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम डियर. Yes, Ashwika, unmute yourself, please. मैम यहाँ पे नंबर 48 में जहाँ पे लिखा हुआ है फूड कंटेन्स स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरिशमेंट? नरिशमेंट मीन्स हमारे खाने में जो ये मिलता है, नरिशमेंट जो हमें खाने के लिए एनर्जी जो मिलती है. मैम व्हाट? Okay, Ashwika. Anam Rahman, unmute yourself.